کریں، خداوند کے پاک نام کا شکریہ ادا کریں جس نے ہمیں صحت تندرستی زندگی عطا کی۔ اس کی ساری نعمتوں برکتوں بخششوں کو یاد کرتے ہوئے اس کی شکر گزاری میں اپنی آنکھیں بند کریں گے اور دعا مانگیں گے۔ اے بہرور کے خالق و مالک یسوع، ابدیت کے باپ، سلامتی کے شہزادے، تو جو ہے، جو تھا، جو آنے والا، اپنی مہربانی کرنے والے باپ، میں تیرے دل سے شکر گزار ہوں آج کی سہانی دوپہر کے لیے جو آپ نے ہماری زندگی میں، تاکہ خداوند ہم گٹے تو بڑے، ہم چھپے اور تو نظر آئے، تیرا ہی پاک نام عزت اور جلال پائے۔ جلال سے بھرے ہوئے خداوند، تو جو خداوند خدا ہے، تو جو عظیم ہے، تو وفادار ہے، مہربان خداوند ہے، تیرے وعدے لا تبدیل ہیں، تیری سنتیں بے مثال ہے۔ خداوند باپ، تیرے بند کی کو کھول نہیں سکتا اور تیرے کھولے ہوئے کو بند نہیں کر سکتا۔ خداوند آج کی بات دوپہر میں ہم سب تیری حضوری میں آ کر، تیرے خدا باپ حضور میں آ کر گیت گائیں، جو بھی کلام مقدس میں سے پڑھیں، سیکھیں، سنیں، خدا باپ تیری مرضی کے مطابق ہو۔ اس وقت جتنے تیری حضوری میں سرنگوں ہیں خداوند باپ، ایک ایک روح بدن کو چھونا، مسا کرنا، پاک روح سے معمور کرنا، تاکہ سبھی تیرے ساتھ وفادار رہ کر تیری خدمت کریں، تیرے پاک نام کو عزت و جلال دینے والے بن جائیں۔ خداوند باپ ہماری سوچوں کو، ہمارے خیالوں کو، ہمارے کردار کو خدا باپ نکھار، تاکہ ہم تیرے پیروکار بن سکے، تیرے لائق تیری عبادت کر سکے، کیونکہ تو عظیم خداوند قادر مطلق وعدوں کا سچا خداوند ہے۔ خداوند آج کا گانا بجانا، آج کا خدا باپ گیت گانا، ہماری سب کی خدا باپ جو بھی ہم گائیں خداوند تیری مرضی کے عین مطابق ہو۔ خداوند باپ ہم سب کی خواہش ہے کہ خداوند ہم سچے دل سے، پورے ایمان سے تیرے ساتھ وفادار رہیں، اور خداوند تو ہمیں اپنے سامنے جھکنا سکھا دے، تاکہ ہم جھک کر تجھے سجدہ کرتے رہیں۔ اس وقت جتنے بہن بھائی ہمارے ساتھ آن لائن پڑھا خداوند باپ، ایک ایک کو چھو مسا کر، جو بھی کوئی مشکلات ہے، پریشانی ہے، دکھ ہے، مصیبت اپنے پاک نام سے دور کرنا، کیونکہ تو ہی حل مشکلات جو ہوا پاک خداوند ہے۔ خداوند ہم تیرے پاس آتے ہیں، کیونکہ خداوند باپ تو نے ہمیں یہ اختیار دیا ہے کہ اور کسی دوسرے کے وسیلہ سے نجات نہیں، آسمان کے تلے زمین کے اوپر کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پا سکے، ایک ہی نام ہے، وہ یسوع راجا آپ کا نام ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہماری زندگیوں میں آئیں اور ہماری زندگیوں میں جتنے بھی غلطیاں، خطائیں، گناہ ہیں، ان کو دور کیجیے اور ہم پر اپنا فضل والا رحم والا ہاتھ بڑھائیے۔ عبادت کے شروع سے آخر تک ہماری بڑی مدد اور رہنمائی کرنا۔ جو کچھ میں نے مان سے مانگا میں نے پایا، سب کچھ مانگتے پا لیتے اور کے پیارے بیٹے ہمارے خداوند یسوع کے نام سے آمین۔ سبھی ہم کلام مقدس میں سے سوز بول کی تلاوت سنیں گے۔ کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، اے اہل زمین سب خداوند کے حضور خوشی کا نعرہ مارو، خوشی سے خداوند کی عبادت کرو، گاتے ہوئے اس کے حضور حاضر ہو۔ جان رکھو کہ خداوند ہی خدا ہے، اسی نے ہم کو بنایا اور ہم اسی کے ہیں، ہم اس کے لوگ، اس کی چراگاہ کی بھیڑیں ہیں۔ شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے پھاٹکوں میں اور حمد کرتے ہوئے اس کی بارگاہوں میں داخل ہو، اس کا شکر کرو، اس کے نام کو مبارک کہو، کیونکہ خداوند بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری پوچھ در پوچھ رہتی ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سن جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ میرے عزیزو آئے ہم بھی خوشی کے ساتھ عبادت میں شامل ہوتے ہوئے خداوند کی پرستش میں آگے بڑھیں گے، گیت گائیں گے اور گا کر خداوند کی حضوری میں اپنے ہونٹوں کا نذرانہ پیش کریں گے۔ Oh,
मेरे अज़ीज़ों, अगर खुदावंद हमारे लिए अपनी जान कुर्बान ना करते तो हम खुदावंद के करीब ना आते और ना ही हमारा कोई सहारा होता। और खुदावंद ने हमें ये शर्त अता किया कि हम उसकी इबादत कर सकें बगैर किसी डर के, खौफ के, क्योंकि खुदावंद हमसे बेहद प्यार करता है। सो आए मेरे अज़ीज़ों, हम खुदावंद की शुक्रगुज़ारी में आगे बढ़ते हुए फिर खुदावंद के साथ मिलकर खुदावंद की साइश करेंगे। Hare
اپنے کاموں سے، اپنے خیالوں سے، اپنی باتوں سے، اپنے بہیو سے جو ہے نا وہ ہم خداوند کو ناراض کرتے ہیں، دوبارہ سے مسئول کرتے ہیں۔ تو آئیں میرے عزیزو، اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ہم اپنے خدا کے پیروکار بننا چاہتے ہیں، ہم اپنے خدا کے ساتھ وفادار رہنا چاہتے ہیں، تو پھر ہم سب کو خداوند کے ان دکھوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے جو اس نے میرے لیے، آپ کے لیے سہے، اور ہم سب مل کر خداوند کی شکر گزاری کریں کہ خداوند تو ہمیں اتنی طاقت بخش، اتنی جرأت مندی دے کہ ہم تیرے پیروکار بنیں، ہم بھی جتنے مسائل، جتنی مشکلات آتی ہیں خدا باپ ان کو سہیں اور تیرے قابل بن سکے۔ خدا جب ہم یہ دعا مانگتے ہیں، جب ہم چرچ میں آ کر گاتے ہیں، بجاتے ہیں اور خداوند کی ستائش کرتے ہیں، تو خداوند بھی ہمیں معاف کر کے ہمیں اپنے گلے لگا لیتا ہے۔ سو آئے ہم خداوند کی شکر گزاری میں آگے بڑھیں گے اور کوائل کے ساتھ مل کر اپنی گیت سے گائیں گے۔
मेरे चीज़ों बड़ा खूबसूरत भी कि पिंडा नाजुक मेरे यीशुदा कोड़े मारो होले होले। हम लोग अपने गुनाहों की वजह से, अपनी बदज़बानी की वजह से, अपने जो हम बुरी बुरी ख्वाहिशात हैं उसकी वजह से अपने यीशु को दोबारा से कोड़े लगाते हैं। और यही गुनाह है जिनको मेरे यीशु ने अपने ऊपर लेकर सिर पर चढ़ गए। आज वक्त है कि हम अपनी जिंदगियों को खुदावंद के ताबिया करें, अपने खुदावंद के साथ अपनी जिंदगियां जो है वो जोड़ लें, ताकि हम भी बच जाएं और दूसरों को भी बचाने की तरबियत करें, दूसरों को भी सिखा सकें। स्वाय हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे और दुआ मांगेंगे कि खुदा बाप मैं चाहती हूँ कि तू मेरे ज़हन को, मेरे ज़मीर को रोशन कर, क्योंकि तू जल्द आ रहा है और तेरे आने के लिए मुझे तैयार होना है। खुदा मैंने भी तेरे साथ हालेलुया का नारा लगाकर बातों पर इस्तकबाल करने और तेरे साथ जाना है। जब हम खुदावंद के सामने ये रिक्वेस्ट रखेंगे, खुदावंद से कहेंगे कि मैं भी खुदावंद तेरी बादशाही में दाखिल होना चाहता हूँ, तो खुदावंद मेरे लिए, आपके लिए इंतजाम करेंगे और हमें अपने साथ लेके जाएंगे। सभी आंखें बंद करेंगे और एक दूसरे के लिए बनकर जाएंगे, एक दूसरे के लिए दुआ करेंगे। तो मैं अंकल वर्ष में सबसे कहूँगी कि वो आए और दुआ मांगे। खास तौर पर जितनी हाजिर जमात यहाँ पे बैठी हुई है उनके लिए दुआ करेंगे कि खुदावंद अपने इन प्यारों को छू और ब्लेस कर, ताकि वो तेरे साथ वफादार रहें। शुक्र करना तुम्हारे बाप के अल्लाह कोई करोड़ बड़ी शुक्र खुदावंदा बड़ी बरकत देती हो, तंदुरुस्ती देती खुदावंदा का दिन चुराए सच्चे मुना दुआ कर रहे हैं खुदावंदा कि ये दिन मार के सभी खुदावंदा मेरा सारा जिंदगी च बचे खुदावंदा अभी लेकर तो सारे मिलजुल के दुआ करने पे हैं खुदावंदा। जिन्हें दुखी, बीमार ने, परेशान ने, बेरोजगार ने, कर्जे जैसी नाम के फंसे खुदावंदा अपने नाम से शिफा कर दे खुदावंदा। मैं दुआ करना फिर तेरी हरकत दे विच अस्पताल के वाले कराचे अपने नाम से शिफा दे खुदावंदा। मैं दुआ करना बेदादा वाला दे जिन्हों का नौकरी नहीं खुदावंदा। मैं दुआ करना कि अजे तक नहीं आए प्यार की डोरी ना खींच खुदावंदा। जिन्होंने लोगों ने रोजे रखे खुदावंदा के रोजे कबूल करी, उन्होंने आशा मरादा पूरी करी खुदावंदा। जमीन के ना पसंद करी, समान का दरवाजा खोल के पसंद करी, रोजे को कबूल करी खुदावंदा। मैं दुआ करना कि अजे तक नहीं आए प्यार की डोरी ना खींच। मैं अपने साल वास्ते दुआ करना खुदावंदा नाम बना बनकर देखता कोई आरोग्य मुश्किल आसान करें तंदुरुस्ती नहीं। मैं दुआ करना बेटी रजिया से जो बेटे ने करी खुदावंदा के घर परिवार में तंदुरुस्ती दे, इतने सारे मुश्किल आसान करें, इन्हें बड़ी बरकत दी खुदावंदा। रोज़ से आके खुदावंदा मेरी चलानी। मैं दुआ करना कि शमारान वास्ते, समाज वास्ते, दुआ वास्ते खुदावंदा नाम बना बना बरकत दे, तंदुरुस्ती दी, सारे नाम की मुश्किल आसान करें तंदुरुस्ती दे खुदावंदा। मैं दुआ करना जो भी आज कलाम सुनाया जाए खुदावंदा थोड़ा भाई कैसी लैके जो अमल करिए तो ईमान यकीन रखिए खुदावंदा। मैं दुआ करना जो भी मेरे जिस्म की बीमारी है, परेशानी है, कोई कमजोरी है, अपने नाम के कैसे कर दे खुदावंद के वसीले आमीन। आज मेरे अज़ीज़ों, हम खुदावंद की साइश में आगे बढ़ेंगे, खुदावंद के नाम को इज्जत और सलाह देंगे और प्रस्तुत करेंगे सब मिलकर।
यीशु मेरा करता मौजूद है। मेरे अजीजों, हम भाग दौड़ करते हैं, बहुत दौड़ करते हैं, लेकिन शिफा नहीं पाते। शिफा तो मेरे यीशु के पास है। जब हम यीशु के कदमों में आ जाते हैं तो शिफा हमें खुद बहुत मिल जाती है। हमारे दरमियान एक बच्ची है, नन्ही बच्ची, वो बहुत बीमार है, कंबल और उसके ना टांगों में बहुत सारे डॉक्टरों के पास जा चुकी है, लेकिन उसको कहीं से फर्क नहीं मिलता। लेकिन जब हम सब मिलकर मुत्तफिक होकर उस बच्ची के लिए दुआ करेंगे तो मेरे अजीजों, मैं मान रखती हूँ कि वो बच्ची मुकम्मल शिफा अता करेगी। जब आप लोग मिलकर दुआ करेंगे। अभी हम खुदावंद की प्रस्तुति में आगे बढ़ेंगे और हमारे साथ बच्ची फरालियास, उसको मैं दावत दूंगी कि वो आए जो भी गीत गाना चाहती है। उसके बाद बेटी सिकरा भी तैयार है, फिर हम
उनके साथ मिला भी हम ले जाएंगे। आप सबको this is not. I'm being granted my Jana Yesu the shadow of the
दोपहर में जाना यीशु के शहर। मेरे चीज़ों हाथ पाँव और सब कुछ हम अपने खुदावंद पर न्यौछावर करते हैं कि हमने खुदावंद के शहर में जाना है। आज हमने अगर खुदावंद के शहर में जाना है तो अपने अपने गुनाहों का इकरार करें। हम जो पिछले सालों में गलतियां खताएं करते आए हैं, आज हम उन गलतियों से गुनाहों से तौबा करके अपनी जिंदगी को अपने खुदावंद के ताबा करें। सो आए हम सब अपनी आंखें बंद करें, सभी आंखें बंद, अपने अपने बच्चों को अपनी गोद में बिठाएं। प्राय मेहरबानी, ये कोई ग्राउंड नहीं है, ये खुदा का घर है। तो बच्चों को जब आप तरबियत नहीं देंगे तो बच्चे किस तरह समझेंगे। तो प्राय मेहरबानी तमाम खवातीन से गुजारिश करती हूँ कि अपने अपने बच्चों को अपनी गोद में बिठाएं और उनको किसी बच्चे का बड़े का डर डालें कि वो यहाँ पे घूमे फिरे ना। अभी हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे और मैं चाहूंगी कि लुबना शुगादिल यहाँ पे आएंगी और दुआ करेंगी खास तौर पर क्रिस्टिया की रूहानी बेदारी के लिए कि हम सब मिलकर दुआ करेंगे कि खुदा इस क्रिस्टिया को बेदार का, और साथ में सभी उस बच्ची के लिए दुआ करेंगे, बच्ची कवर के लिए। खुदावंद जिंदा आसमान और ज़मीन के खालिक मालिक आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं पाक खुदा, आज के इस दिन और वक्त पारी के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्शा, ताकि आज खुदा बाप इस मुबारक जुमा में हम सारा इज्जत और जलाल तुझे देने वाले बने पाक खुदा। दुआ करती पाक खुदा तेरी पाक हैकल के लिए कि जो लोग तुझसे दूर हैं पाक खुदा, उनके दिलों में अपना डर और खौफ रख, ताकि वो अपनी जिंदगियों खुदावंद तेरे नाम करने वाले हों और तेरे पाक मज़बा के आगे झुके पाक खुदा। अपनी ज़िंदगी के आयाम के दिनों को खुदावंद तेरी शुक्रगुजारियों के लिए खुदावंद करे। ऐ पाक जिंदा खुदा, इस वक्त खुदावंद इस अपनी पाक हैकल में पाक खुदा अपने मस्सा को, अपने रूह को खुदावंद खुदा भेजना, ताकि हर एक रूह, हर एक बशर पाक खुदा तेरे रूह की बेदारी से भर जाए पाक खुदा, और लोग तुझ पर ईमान लाने वाले बने पाक खुदा। जो लोग अभी नहीं आए पाक खुदा, तू उनको अपने प्रेम की डोरी से खींच, ताकि लोग तेरे घर में, तेरी पाक हैकल में जमा हो सके। और आज इस वक्त पल में ऐ पाक खुदा सारा इज्जत और जलाल तुझे देने वाले बने पाक खुदा। तू अपना जलाल इस वक्त जाहिर करना ऐ पाक खुदा, इस कलीसिया में इस रूहानी बेदारी को पैदा करना, ताकि लोग अपने काम काज छोड़ें और पाक खुदा तेरे आगे झुक जाएं, दुनियावी कामों में मसरूफ न रहे, बल्कि जिंदा खुदा के लिए अपनी जिंदगी गुजारने वाले बने पाक खुदा। इनके दिलों को बदल जिंदा खुदा, इनकी सोचों को बदल पाक खुदा, ताकि लोग तुझ में बढ़े और तरक्की करें। ऐ पाक खुदा ये कम होते जाएं और तू इनमें बढ़ता जाए पाक खुदा, ताकि तेरे पाक मज़बा पे आके खुदा मत सारा इज्जत और जलाल तुझे दे। ऐ पाक खुदा मैं दुआ करती हूँ जिंदा खुदा उस बच्ची के लिए जो बीमार है पाक खुदा, जिनके माँ बाप परेशान है पाक खुदा, उस बच्ची को पाक खुदा तू शिफा देना। आप ना पाक लहू, कलवरी का लहू पाक खुदा उस बच्ची पर लगाना, ताकि इसकी सारी बीमारी आज यीशु नाम से जाती रहे। हम सारी कलीसिया मुत्तफिक होकर पाक खुदा आज तेरी पाक हैकल में खुदावंद खुदा अपनी कमजोर गर्दनों को झुकाते और तेरे आगे खुदावंद खुदा मिन्नत और फरियाद करते हैं बच्ची के लिए खुदावंद, जिसने बड़े ईमान के साथ खुदा बाप तेरी कलीसिया के आगे, तेरे खादमों के आगे पाक खुदा तेरी हैकल में इस दरख्वास्त को रखा है कि खास दुआ की जाए। तो मैं तेरी मिन्नत करती हूँ पाक खुदा, उस बेटी को तंदुरुस्ती देना, जिंदगी देना, उम्र की दराजी, सलामती बख्शना, ताकि वो बच्चे अपने माँ बाप के लिए बरकत का बाइस बने और इस कलीसिया के लिए पाक खुदा तेरे नाम में आगे बढ़े और तरक्की करे। आज खुदा बाप इस वक्त तू अपना फजल और रहम अता करना। ऐ खुदा जो कुछ भी मैंने मांगा है खुदावंद तू इस वक्त बख्शना, अपनी बेटी के साथ होना पाक खुदा, बाजी रंसिया को बंद कर देना, पाक रूह के और मस्तक में गहरे में ले चलना, ताकि तेरी बेटी तेरी खिदमत को शाना बशाना पाक खुदा कर सके और तेरे मकसद को पूरा कर सके। तूने इंसान का फिदिया इसलिए नहीं दिया कि हम अपने गुनाहों में
दुनियावी कामों में मसरूफ हो जाएं। पाक खुदा तूने हमें अपने लहू से खरीदा ताकि हमारी जिंदगियां यीशु तेरे नाम से खुदा बाप गुजरे। ऐ जिंदा खुदा आज वक्त खुदा बाप इस कलीसिया पर और खुदावंद खुदा इन सब लोगों पर तेरी बरकत को मांगती हूँ। खुदावंद गीतों पर साजों पर पाक खुदा तेरी बरकत को मांगती हूँ। जिंदा खुदा कवायर पर तेरी बरकत को तेरे मस्ता को मांगती हूँ। पाक खुदा इनको बरकत देना, गाने में इनकी रहनुमाई मदद करना और इनके साथ होना। और आज का ये वक्त ये दिन हमारे लिए खुदावंद तेरी बरकत का तेरी मर्जी के मुताबिक हो पाक खुदा। और जो कुछ मांगा है तेरे प्यारे बेटे और अपने खुदावंद यीशु के नाम से। गॉड ब्लेस यू बेटा। खुदावंद आप सबको बरकत दे। सो आए हम सब खुदावंद की शुक्रगुजारी में आगे बढ़ते हुए बेटी सिद्रा के साथ मिलकर खुदावंद की साजिश करेंगे। आप सबको मेरी तरफ से सलाम। Yes.
यीशु के मार खाने से हम सब ने शिफा पाई है, और शिफा लेकर हम भूल जाते हैं, बहुत जल्द बेवफाई कर देते हैं खुदावंद के साथ। लेकिन जब हम और ज्यादा मुसीबत में, परेशानी में फंस जाते हैं, तो फिर हम यीशु के कदमों में आते हैं। तो आज क्यों नहीं हम अपने यीशु के कदमों में रहें? हमें फटना नहीं चाहिए, चाहे दुख आए, मुसीबत आए, खुशी आए, हमें यीशु के कदमों में रहना चाहिए, ताकि वो हमें बरबकत फलदार करे, बरबकत बढ़ाए। तो आए हम सब खुदावंद की शुक्रगुजारी में आगे बढ़ेंगे, हम दुआ मांगेंगे खुदावंद की हुजूरी में, सारी नेमतों बरकतों का शुक्रिया अदा करें, सेहत तंदुरुस्ती का खुदावंद के सामने झुककर दुआ करेंगे। खुदावंद आपने मुझे सेहतयाबी ताकि, तंदुरुस्ती ताकि, जिंदगी ताकि, तो मैं तेरी सारी नेमतों की शुक्रगुजार हूँ। सभी आंखें बंद हो जाएंगे, हमारे दरमियान बेटी निदा परवेज है, उससे कौनी दुआएं, और तमाम बीमार लोगों के लिए खुदावंद से दुआ करेंगे। खुदा बाप, जितने लोग बीमार हैं, कमजोर हैं, परेशान हैं, उनकी सारी बीमारियों को दूर करेंगे। आए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, खुदावंद की हुजूरी को महसूस करेंगे। कदूस मेहरबान सच्चे जिंदा आसमानी बाप, शुक्रगुजारी करते हैं इस वक्त इस मौका इस घड़ी के लिए। ऐ खुदावंद को बख्श दिया ताकि आपके नाम को इज्जत और जलाल देने के लायक ठहर सके। ऐ खुदावंद, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास तंदुरुस्ती जैसी नेमत नहीं, और वो आपके घर में नहीं आ सकते। खुदावंद, मैं शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदावंद हमें इस लायक ठहराया कि हम आपकी पाक पैदल में आए, और खुदावंद आपके नाम को इज्जत और जलाल दे सके। ऐ खुदावंद, मैं शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावंद, हर रोज जो साथ देते हैं खुदावंद, एक वक्त में हमारा साथ देने के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। और खुदावंद, गुजरे हुए तमाम वक्त में खुदावंद जो चीजें आपने हमें मुहैया की, ऐ खुदावंद, मैं उनके लिए शुक्रगुजारी करती हूँ। ऐ खुदावंद, गुजरे वक्त में जो हमारा ख्याल रखा, जो साथ दिया, तमाम बुरे हादसात और कोरोना टेस्ट से बचाव कर रखा, मैं शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावंद इन तमाम के लिए। ऐ मुकद्दस पाक, मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावंद इस कलीसिया के लिए। ऐ खुदावंद, ये लोग जो आपके प्यार से यहाँ आए हैं खुदावंद, ऐ खुदावंद, इनको दिलों बरकतें देकर खुदावंद यहाँ से रुखसत करना। ऐ खुदावंद, मैं दुआ करती हूँ खुदावंद कि आज इस हैकल में जितने लोग बीमार हैं खुदावंद, आज आप इनकी बीमारियों से वाकिफ हैं खुदावंद, आपने हमारी खातिर अपने खून का फिदिया दिया है। तो खुदावंद, इस राजा आज खुदावंद उस वादा को पूरा करें कि मांगो तो दिया जाएगा खुदावंद। आज से लोग आपसे मांग रहे हैं, तो खुदावंद इनको अता करें। ऐ खुदावंद, इस राजा इनको अपने पेट की टोली से खींच कर लेकर यहाँ तक आए हैं, तो खुदावंद मेरा ईमान है कि आप इनसे प्यार करते हैं, और इनको बरकत देने की कुदरत सिर्फ आपके पास है। ऐ खुदावंद, मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावंद, और मैं दुआ करती हूँ खुदावंद, जितनी दरख्वास्तें आपके पाक मजबा पर बीमार लोगों की रखी गई हैं, ऐ खुदावंद उन दरख्वास्तों से आप वाकिफ हैं। ऐ खुदावंद, जितने लोगों ने दरख्वास्तें नहीं भी दी, ऐ खुदावंद आप उनको भी जानते हैं। ऐ खुदावंद, आज इन तमाम लोगों की बीमारियों को अपने यीशु नाम से खत्म करना। ऐ खुदावंद, आज इनके अंदर से बीमारियां जाती रहे। ऐ खुदावंद, आज इनकी जिंदगी बदल जाए। ऐ खुदावंद, आज के कलाम की वसीला से खुदावंद इनकी जिंदगी बदल जाए, क्योंकि खुदावंद आप लातबीब खुदा हैं। ऐ खुदावंद, मैं दुआ करती हूँ एक बार फिर से खुदावंद इनके लिए। ऐ खुदावंद, इनको रूहानियत में इतना विदाई करना कि खुदावंद इनको कहने की भी जरूरत न पड़े कि आपके घर में आए। ऐ खुदावंद, आपके प्यार से आपके घर में चले आए, और ऐ खुदावंद, आपकी हैकल में खुदावंद एक बचपा और खुदावंद जमा होकर आपकी प्रेजेंस कर सके। ऐ खुदावंद, जिस बेटी की दरख्वास्त आपकी हुजूरी में रखी गई है, जो बीमार है खुदावंद, ऐ खुदावंद, आप उसकी बीमारी से वाकिफ हैं। ऐ खुदावंद, सर के बालों से लेकर पाँव में तलवे तक उसको छूना, और अपनी वस्ता वाली आग को उसके जिस्म में डाल देना, क्योंकि खुदावंद आप मौजूदात के खुदा हैं। ऐ खुदावंद, उस बच्ची की जिंदगी में मौजूदा करें खुदावंद, ताकि वो आपके नाम की गवाही दे सके। ऐ खुदावंद, मैं दुआ करती हूँ एक बार फिर से तमाम लोगों के लिए, और खुदावंद, जितने भी दुनिया में बीमार लोग हैं खुदावंद, हॉस्पिटलाइज्ड हैं खुदावंद, आप उनको जानते हैं, और तमाम लोगों की बीमारियों को अपने यीशु नाम से खत्म करना। ऐ खुदावंद, सबके साथ होना। ऐ खुदावंद, हमारी आंटी के साथ होना खुदावंद, जो इस पीढ़ी को लीड करती हैं। ऐ खुदावंद, हम तक आपका कलाम और हम तक आपकी आवाज को पहुंचाती हैं। ऐ खुदावंद, आज आप उनको जानते हैं, और खुदावंद उनको अंदर से बरकत देने की कुदरत रखते हैं। खुदावंद, तमाम म्यूजिक सिस्टम के ऊपर अपनी बरकत वाले हाथ को बढ़ाना, और खुदावंद, हर तरह के हालात में खुदावंद अपना कंट्रोल यहाँ कायम करना। मेरा ईमान है कि खुदावंद, मैंने जो कुछ मांगा आपके यीशु नाम से पा चुकी, जो कुछ मांगा बोलिए अपनी लाइफ खजाना से पूरा करना। मांगे हूँ आपके प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। God bless you, बेटा। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम टाइम के बहुत पाबंद हैं। हमारा टाइम जो है अब हम बड़ी पाबंदी के साथ खुदावंद के घर में आते हैं। कितने बजे का टाइम है हमारा? कितने लोग 2 बजे आए? थोड़ा हाथ खड़ा करें। सिर्फ
जब मैं आई अंकल मौलवी साहब थे और वो आंटी पीछे बैठे हुए हैं, वो थे, भाई लोग थे। तो आपको मैं बताना ही चाहती हूँ कि जब आप अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, अगर वो टाइम पर नहीं जाते तो भाई जी उनको पनिशमेंट मिलती है कि नहीं? तो जब उनको पनिश मिलती है तो उनके हाथों पे वो मारते हैं, सीने या जुर्माना दिया जाता है। और अगर भाई लोग ड्यूटी पे लेट पहुंचे तो उनकी तनख्वाह में से काट लेते हैं। वो कहते हैं कि अगर आपने लेट आए तो हम आपकी तनख्वाह में से काटेंगे। तो फिर वो क्या हो जाते हैं? पाबंद। आप खुदावन से नहीं ना करते, इसलिए तो आप ऐसा करते हैं, आपको भी पनिशमेंट मिलती है। लेकिन आप लोग, हम लोग जो है ढीठ हो चुके हैं। हम लोग कहते हैं कोई बात नहीं, तंगी तकलीफें मुसीबतें परेशानियां सह लेते हैं, लेकिन पूरा टाइम खुदा को नहीं देते। 2 घंटे टाइम है, उसमें से भी आपने कहता अपने कामों में सर्व करना है, खुदा के घर में नहीं आना। बड़ाई मेहरबानी जो आप लोगों को टाइम दिया जाता है उसको मद्देनजर रखते हुए अपने दुनियावी कामों को छोड़ दिया करें और सिर्फ और सिर्फ इबादत के लिए अपने आप को तैयार किया करें। सो आए हम खुदा की शुक्रगुजारी में आगे बढ़ेंगे, गीत गाएंगे। सब लोग गीत गाना चाहते हैं? सब लोग आपकी तालियां मुझे बताएंगे कि आप गीत गाना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आए हम सब मिलकर खुदा की साइश में गीत गाएंगे। बड़ी बैठी है तो 3 बार मुझे कहेगी कि एक बार करो, मैं गीतों का की साइश में आप सबसे सुना है मेरी जिंदगी का फरियाद ना करो याद आए हम सब मिलकर खुदा की साइश करते हैं।
हमेशा हमारी फरियाद को सुनता है। उसने हमारी सूरत अपनी हथेलियों पर खोल रखी है। वो नाम बनाम जानता है कि हम किन किन चीज़ों के मोहताज हैं और क्या चाहते हैं। अगर हम शिफा चाहते हैं, अगर हम गुर्बत से रहाई चाहते हैं, अगर हम कर्ज़ों से रहाई चाहते हैं, तो वो जानता है, हमारी फिक्रें वो करता है, हमसे प्यार करता है, क्योंकि वो प्यार का मंबा है। मेरे पास जो दरख्वास्तें आई हैं मैं उनके नाम अनाउंस करूँगी। अंकल बशीर साहब हैं, उनके लिए हम दुआ करेंगे। अम्मी एलिस के लिए दुआ करेंगे। बेटी कमल के लिए दुआ करेंगे। बहन समीना रियाज और उसकी बेटी के लिए भी दुआ करेंगे। इसी तरह चंदा अजील के लिए भी दुआ करेंगे। भाई प्याज के लिए, उनके भाई अलमास के लिए भी दुआ करेंगे। दीगर जितने भी इस हिस्से में बीमार हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, उन सब के लिए दुआ करेंगे। तो मैं चाहूँगी कि मेरे प्यारे भाई जाबर यहाँ पे आएँ और इन तमाम बीमार लोगों के लिए खुदा उनसे दुआ करें। सभी आंखें बंद हो जाएं, सभी दुआ करें। यीशु के निलाली का बरकत मैं सबको सुना सोने दिलो आए हम अपनी आंखों को बंद करें तो खुदा की हज़ूरी को महसूस करें। कोई आंख खुली न रहे क्योंकि खुली आंख खुदा का मुकाबला करती है। कदूस 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 मेरा रब पास खुदावन, मेरे यूर खुदावन, मैं दिल दिल की गहराइयों से आपका शुक्र अदा करता हूँ आज के इस दिन के लिए जो आपने हमें बख्शा है कि हम आपके सुंदर कदमों में झुके और आपकी हज़ूरी को महसूस करें। मेरे खुदावन, आपने हमसे वादा किया है कि जहाँ 2 या 4 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं वहाँ मौजूद हूँ। तो मेरे खुदावन, हम बहुत ज़्यादा हैं तो आपका तख्त यहाँ लग चुका है। आप अपने वादे के मुताबिक यहाँ मौजूद हैं। हम अपनी तमाम दुआओं को, फरियादों को, मनाजातों को आपके तख्त के सामने रखते हैं क्योंकि आप हमारी दुआओं को सुनते और उन्हें कबूल करते हैं। मेरे खुदावन, आपका कान इतना भारी नहीं कि हमारी दुआओं को सुन ना सके और आपका हाथ इतना छोटा नहीं कि हम आगे बढ़ के हमें छू ना सके और हमें बरकत ना दे सके। मेरे खुदावन, जितनी दरखास्तें यहाँ आई है इन सबको तेरी पाक शरीर के नीचे लेके आता हूँ। वो शरीर जो हमारे गुनाहों के लिए उठाई गई है मेरे खुदावन, इन सबको आपके पास शरीर के नीचे लेके आता हूँ। और इनके जिसमें जो भी बीमारी की गंदी तस्वीरें पाई जाती है, कोई कारोबारी बंधन से, तो यीशु नाम के वसीला से इन सब बीमारी की गंदी तस्वीरों को हुक्म देते हैं कि यीशु नाम के वसीला से बंधनों को छोड़ दे। और हर अगर कोई कारोबारी बंधन से, तो यीशु नाम के वसीला से तुम्हारी तमाम कारोबारी बंधन को यीशु नाम के वसीला से डांटते हैं। मेरे खुदावन, हम आपको पुकारते हैं जिस तरह वो अंधा आदमी पुकार रहा था, हम भी आज उसी तरह पुकारते हैं। ऐ यीशु इब्ने दाऊद, हमारी दुआओं को सुने और इन्हें कबूल कीजिए क्योंकि आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। मेरे खुदावन, आपने वादा किया है, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, तुम्हें किसी चीज़ की फिक्र करने की जरूरत नहीं क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। तो मेरे खुदावन, हम अपनी तमाम तर फिक्रें, अपनी तमाम तर टेंशन, अपनी तमाम तर सोचे आपके हैंड ओवर करते हैं मेरे खुदावन, क्योंकि आप अपने वादे के मुताबिक हमारी फिक्र करते हैं मेरे खुदावन। मेरे खुदावन के मुकद्दस जलाली नाम के वसीला से मेरे चीज़ों खुदावन ने मुझे और आपको ये फरमाया है कि मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तुम्हारे वास्ते खोल दिया जाएगा। तो मेरे चीज़ों, हमें अख्तियार मिला है कि हम मुझसे मांगे और कोई भी इंसान या कोई भी ऐसी हस्ती नहीं है जो हमें कहे कि मांगो। खुदावन ने हमें ये अख्तियार दिया कि मांगे और मांगना किससे है? खुदावन से। आए खुदा पूछे ना, सभी पूछे तो थोड़ा
स्वामी ने जो हम शुक्रगुजार हैं कि हमने खुदा की प्रतिष्ठि खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दिया। अब वक्त है कि हम खुदा की आवाज़ को सुने। हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे, सभी आंखें बंद हो जाए, हाथ आसमान की तरफ बढ़ा लीजिए और दुआ मांगना शुरू करें कि खुदावन तो अपने बंदा का जोर बन, अपने बंदा को बरकत ताकि खुदावन वो तेरा बंदा जब कलाम सुनाए तो बोल बल्कि तेरा पाक उसमें होकर बोले। अपने घरानों के लिए बरकत चाहें, अपने लोगों के लिए बरकत चाहें कि खुदावन मेरे घराने को बरकत दे। खुदावन मेरे घर में जो बीमार है, परेशान है, जो कर्ज की लालच में है, खुदावन बाप उन सब पर अपना पवित्र हाथ दिया, अपने हाथ आसमान की तरफ बढ़ाएं और मांगना शुरू करते हैं। मेरे से जब हम मांगते हैं, मुत्तफिक होकर मांगते हैं, तो खुदा उनका आसमान खुल जाता है, वो अपने लोगों को बरकत देने के लिए आ जाता है। वो यहाँ पे मौजूद है, उसकी मौजूदगी में मांगे अपनी जो भी ख्वाहिशात है, अपने जो भी मसले मसाइल है, अपने बाप के सामने रखें। वो बाप है, वो आपको मांगने से पिछले भी जानता है। जब आप उससे कहेंगे तो वो अपना आसमान खोलेगा, आपको बरकत आ करेगा। लेकिन जब आप खामोश रहेंगे, आप दुनिया की नगरी में, दुनिया के ख्यालों में बढ़ेंगे, तो आप बरकत नहीं लेके जाएंगे। बरकत नहीं है तो मांगे, ये वक्त है, ये टाइम है, बरकत का क्या बरकत लें। मैं बात चले किसी मांगने की आए और आपकी तैयारी के लिए खुदा से दुआ करें, सभी दुआ करें, अपनी आवाज आगे बालों तक पहुंचाने के लिए अपनी आवाजों को बुलंद करें, अपने हाथों को बुलंद करें और दुआ करें। परूस कायनात के बादशाह यहोवा खुदा लश्करों के रब आसमान और जमीन को खलक करने वाले खुदा, मैं दिल की गहराइयों से तेरा शुक्रगुजार करती हूँ और तुझे मुबारक कहती हूँ, तुझे तो मुबारक। मेरे खुदावन तेरी शुक्रगुजार हूँ कि हम सब तेरी हजूरी में सर रहो। एक एक पर मैं तेरा पाक लहू मांग लेती हूँ, एक एक को तेरे हैंड ओवर करती हूँ, एक एक रूह जान बदन तेरी पनाह में लेती हूँ। मेरे खुदावन यीशु, एक एक को छूना आज का पाक कलाम जो हमारे लिए है, उसके वसीला से खुदावन हमारे घरों से बीमारियां, दुख, मुसीबतें, परेशानियां तेरे कलाम के वसीला जाती है। मेरे खुदावन तेरा कलाम फरमाता है कि जब कलाम नाज़िल होता है तो इब्लीस के झगड़े आजाद हो जाते हैं, बीमारियों से रिहाई मिल जाती है। मेरे खुदावन तू अपने कलाम को नाज़िल फरमाना और एक एक रूह पर, बदन पर तेरा पाक रूह भेज। मेरे खुदावन यीशु, सारे वक्त के लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ जो अहम हिस्सा कलाम का है, जिसके वसीले हम बरकत पाते हैं, और तेरा कलाम जो हमें जिंदगी बख्शता है। तेरे बेटे को जिसके पास तेरी जिंदा आवाज है, तेरे पाक लहू में छुपा देती हूँ। बोलने वाला वो नहीं, तेरा पाक रूह हो। खुदावन यीशु, जितने हमें दूर नजदीक से देख रहे हैं, एक एक पर मैं तेरा फजल मांगती हूँ। सब खुदावन बीमारों पर, परेशानियों पर और खुदावन जो मुसीबत में है, एक एक को खुदावन आज तेरा कलाम तसल्ली दे। मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ, ईमान रखती हूँ कि जो कुछ तुझसे मांगा है, ईमान से पा लिया है। सारा इज्जत जलाल तेरे बेटे यीशु को मिले, मसीह खुदावन यीशु के नाम से, आमीन। आपकी भरपूर तालियों में मैं खुदा के कादम बुलाती हूँ। सबको दावतों की जोरदार तालियां। मेरी तरफ से आप सभी के सलाम। और हम आज सब इस जगह पर जमा हैं खुदा के पाक कलाम को सुनने के लिए, सीखने के लिए और उस पर अमल करने के लिए। मेरे साथ आप बाइबल मुकद्दस में से निकालें। हम आज का जो हमारा अनुमान है, हमारा टॉपिक है उम्र की दराजी, क्योंकि आज बाइबल के कानून के मुताबिक इंसान की उम्र जो औरत से पैदा होता है वो थोड़े दिनों की है, कोई 60 वर्ष, कोई 70 वर्ष, कोई 80 वर्ष। और हमें आज इस बात पर गौर करना है कि हमारी उम्र हमारी दुआ के वसीला से बढ़ सकती है या हमारे उन कामों की वजह से जो खुदा को नापसंदीदा है उनकी वजह से काम भी हो सकती है। मेरे साथ निकालें खरोज की किताब, उसका 20वां बाब
خروج کی کتاب اس کا 20واں باب اس کی 12ویں آیت کا مطالعہ کریں گے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو۔ اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اگر ہم اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کریں گے، ہم ان کے حکموں پر عمل نہیں کریں گے، ان کی کوئی بات کو ٹالیں گے، تو خدا ہمیں ضرور قصوروار ٹھہرائے گا۔ کیونکہ کلام مقدس میں یہ بات واضح طور پر لکھی گئی ہے خروج کی کتاب میں کہ تو اپنے باپ اور اپنے ماں کی کیا کرنا؟ عزت کرنا، اور تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو۔ ہماری عمر اس طرح دراز ہو سکتی ہے کہ ہم خدا کے حکموں پر عمل کریں، بائبل مقدس کو ہم بلا ناغہ پڑھیں، جیسا کہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ہر وقت خوش رہو اور بلا ناغہ دعا کرو۔ جب ہم دعا چھوڑ دیتے ہیں تو خدا ہمیں چھوڑ دیتا ہے، اور ہماری عمر میں کوتاہی آنی شروع ہو جاتی ہے۔ ہم خدا سے جب دور ہوتے ہیں تو ہماری عمر بجائے دراز ہونے کے ہماری عمر کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ہم ہر سال اپنے سالگرہ کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، ہم ہر سال اپنے لیے کیک کاٹتے ہیں، تو ہم نے کبھی اس بات پر غور نہیں کیا کہ ہم نے زندگی کے 30 سال کو مکمل کیا ہے یا 35 سال کے ہو گئے ہیں، تو ہم نے پچھلے جو 35 سال ہیں اس میں خدا کو کتنا وقت دیا ہے، خدا کے کلام کو اپنے دل میں رکھا ہے یا نہیں رکھا۔ آج بہت جدید دور جا رہا ہے، ہر آدمی، ہر بہن، ہر بھائی، بچی، ہر بچہ ایڈوانس چل رہا ہے۔ انٹرنیٹ کی سہولت ہر جگہ پہ ہے، کوئی بھی آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو فوری انٹرنیٹ کو یوز کر کے آپ اس کو نکال سکتے ہیں، مگر عمر کی درازی کو آپ اس انٹرنیٹ سے کبھی نہیں نکال سکتے۔ آپ عمر کی درازی کو نکال اسی صورت میں سکتے ہیں جب خدا کے حکموں پر آپ عمل کریں گے، کیونکہ خدا کا حکم یہ ہے کہ تو اپنے باپ اور اپنے ماں کی کیا کرنا؟ عزت کرنا۔ میرے ساتھ نکالیں خروج کی کتاب اس کا 23واں باب اور اس کی 25ویں آیت کا مطالعہ ہم کریں گے۔ خروج کی کتاب اس کا 23واں باب اور اس کی 25ویں آیت میں یوں لکھا ہے، اور تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا، تب وہ تیرے روٹی اور پانی پہ برکت دے گا۔ برکت ہمیں کب ہی ملے گی؟ جب ہم اپنے ماں باپ کی عزت کریں گے، ہم خدا کے حکموں پر عمل کریں گے، خدا کی عبادت کریں گے، کسی غیر معبود کو ہم سجدہ نہیں کریں گے، تو خدا کا جو وعدہ ہے وہ ہمارے لیے اس نے پورا کیا ہے، تب میں تیرے روٹی اور تیرے پانی پر برکت دوں گا۔ آج لوگ بے شمار روپیہ پیسہ کما رہے ہیں، لوگ کمائی میں برکت نہیں ہے، بہت سے لوگ پریشان ہیں، بہت سے لوگ بیماری میں مبتلا ہیں، کئی لوگوں کے پاس زندگی بھر اپنا مکان نہیں ہے۔ ہم اپنے مکانوں کو بہت زیادہ سجاتے ہیں، ان کو پینٹ کرواتے ہیں، ہم ان کو اچھے طریقے سے ان کی صفائی کرتے ہیں، کبھی ہم نے اپنے دلوں کو جانچا ہی نہیں، کبھی ہمیں جانچا ہی نہیں ہم نے ان کو، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو جانچتے تو سزا نہ پاتے، لیکن خدا ہم کو سزا دے کر اس دنیا سے علیحدہ کرتا ہے کہ ہم دنیا کے ساتھ قصوروار نہ ٹھہریں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ تو اپنے باپ اور اپنے ماں کی عزت کرنا، تب وہ تیرے روٹی اور پانی پر برکت دے گا، اور میں تیرے بیچ سے بیماری کو دور کروں گا۔ یہ اس کا دوسرا وعدہ ہے کہ میں اگر کسی شخص جو خدا سے دور ہو جاتا ہے، خدا کے حکموں کو وہ کچھ دیر کے لیے ڈینائی کرتا ہے، ان کو بھول جاتا ہے، تو ضرور ہے ابلیس اس کی زندگی میں فوری داخل ہو جاتا ہے، تو ابلیس اس کی زندگی میں آ کر اس سے برے کام کرواتا ہے۔ تو خدا کا وعدہ ہے کہ میں تیرے بیچ سے بیماری کو دور کروں گا۔ حالانکہ آپ سب جانتے ہیں کہ ایوب نبی جو خدا کا بہت پسندیدہ آدمی تھا، اس کو بھی ابلیس نے آزمایا، ابلیس نے اس کو کتنا دکھ دیا، اس کے مال مویشی جو ہیں وہ چھن کے، اس کے 10 بچے وہ مر گئے، روپیہ پیسہ دھن دولت اس کا جاتا رہا۔ پھر اس کی بیوی نے کہا کہ تو اب خدا کی حقارت کر، اور خدا نے جو تیری عمر کو کم کر دیا ہے، تجھے
بے شمار بیماریوں میں مبتلا کر دیا ہے، تو اس نے کہا تو ندان عورتوں کی سی باتیں کرتی ہے کہ ہم خدا سے سکھ پائیں اور اس سے دکھ نہ پائیں۔ آج ہم اس بات کی اویئرنیس ہمیں ہونی چاہیے کہ جب خدا ہمیں تنبیہ کرتا ہے، کوئی ہم پر دکھ یا مصیبت آتا ہے، تو ہم فوری طور پر خدا کو چھوڑ کر غیر معبودوں کے پاس جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ ایک فیملی کے پاس ان کے گھر خدا کے خادم گئے، تو ان کے کچھ روپے جو ہیں وہ گم ہو گئے۔ پادری صاحب نے دعا کی تو وہ جو اپنے گھر واپس آ گئے، تو 1 سال کے بعد ان کا وہاں پہ دوبارہ جانا ہو گیا۔ 1 سال کے بعد وہ پادری صاحب اس فیملی کے گھر دوبارہ گئے۔ انہوں نے بڑا جھجکتے ہوئے پوچھا کہ پاسٹر صاحب معذرت کے ساتھ ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہماری ایک رقم تھی، وہ یہاں جب آپ آئے تھے تو اسپیس پر پڑی تھی تو وہ ہمیں مل نہیں رہی، سال ہو گیا پورا۔ پادری صاحب نے کہا کہ وہ پیسے تو آپ کے گھر میں پڑے ہوئے ہیں، آپ نے دیکھے نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم نے تو کوئی یہاں پہ ہم نے بڑی صفائیاں کی ہیں، ہم نے بڑا ڈھونڈا ہے، ہمیں وہ پیسے نہیں ملے۔ تو انہوں نے کہا جب میں آپ کے گھر آیا تھا تو آپ کے میز پر وہ پیسے پڑے تھے، میں نے جب وہ پیسے دیکھے تو میں نے وہ پیسے بائبل مقدس میں رکھ دیے، اور آپ نے اتنا گوارا نہیں کیا کہ پورا سال آپ نے بائبل مقدس کو کھولا تک نہیں۔ کتنی شرم والی بات ہے ان مسیحوں کے لیے جو بائبل کو فوری طور پر اپنے گھروں میں رکھتے ہیں، اس کو اونچی جگہ پہ رکھتے ہیں، مگر اس کو اپنے دلوں میں نہیں رکھتے، اس بائبل کو پڑھتے نہیں ہیں۔ جب اس بائبل کو نہیں پڑھیں گے، دنیاوی کاموں میں کھوئے رہیں گے، تو دنیاوی کاموں میں کھو کر اپنی زندگی کو بھی کھو دیں گے۔ کیونکہ یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے 3 باب 16 آیت کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ہلاک وہی ہوگا جو خدا سے دور ہے، اور جس کے پاس خدا کا بیٹا ہے، میرا ایمان ہے کہ خدا اس کو کبھی اکیلا یا اس کو شرمندہ نہیں ہونے دے گا۔ زبور کی کتاب 34 زبور میرے ساتھ نکالیں اور اس کی 12ویں آیت کا ہم مطالعہ کریں گے۔ کلام اقدس میں زبور نویس یوں لکھتا ہے، وہ کون آدمی ہے جو زندگی کا مشتاق ہے اور بڑی عمر چاہتا ہے تاکہ بھلائی دیکھے۔ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو کہے گا ہم جوانی کے دن میں مر جائیں، یا کوئی اپنی موت کو خود دعوت دے گا۔ کلام حق ہمیں یہ کہتا ہے کہ جو اپنی موت مانگتا ہے وہ ملعون ہے، وہ لعنتی ہے۔ خدا نے ہمیں اپنی ستائش کے لیے پیدا کیا، اور ہم خدا کی ستائش کو چھوڑ کر اپنے دنیاوی کاموں میں کھو جاتے ہیں، تو اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ کلام حق میں لکھا ہے، وہ کون آدمی ہے جو زندگی کا مشتاق ہے اور بڑی عمر چاہتا ہے تاکہ بھلائی دیکھے۔ اس کے لیے ایک شرط بھی خدا نے رکھی ہے کہ جس نے بھلائی دیکھنی ہے اس کے لیے ایک شرط بھی خدا نے رکھی ہے کہ وہ اپنی زبان کو بدی سے باز رکھے اور اپنے ہونٹوں کو دغا کی بات سے، بدی کو چھوڑ اور نیکی کا صلح کا تعلق ہو اور اسی کی پیروی کر۔ آج کوئی بہن بھائی ہم سے ناراض ہو جاتا ہے تو ہم اس سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ہم نے کبھی یہ کوشش نہیں کی کہ کیا وجہ ہے یہ ہمارا بہن یا بھائی ہم سے ناراض ہے، ہم سے دور ہے۔ تو جب ہم اس سے دور ہو جاتے ہیں تو ابلیس جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں قبضہ کر لیتا ہے اور ہماری زندگیوں کو کم کر دیتا ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ خدا نے انسان کو اگر 60 سال کی عمر دی ہے، 18 سال جو قانون کے مطابق جو ہے اس وقت بچہ جو ہے وہ بالغ ہوتا ہے، اس کو نیکی اور بدی کی پہچان نہیں ہوتی۔ یہ والدین کا فرض ہے کہ اس بچے کو، اس بچی کو چرچ میں لے کے آئیں۔ اگر وہ نہیں لاتے تو اپنے بچے کے ساتھ وہ زیادتی کرتے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ اپنے چھوٹے بچوں کو چرچ میں ضرور لے کے آئیں تاکہ کلام کے جو گہرے مکاشفات ہیں ان کو جاننے کی وہ کوشش کر سکیں۔ کیونکہ یسوع نے بھی کہا کہ چھوٹے بچوں کو میرے پاس آنے دو، انہیں منع نہ کرو، کیونکہ آسمان کی بادشاہی ایسو ہی کی ہے۔
خدا کی بادشاہی میں وہی لوگ جا سکتے ہیں جو اس کے ساتھ ہیں اور جو اس کے محرم راز ہیں، جو خدا کی باتوں پر عمل کرتے ہیں، جو اپنے والدین کی عزت کرتے ہیں۔ جو اپنے والدین کی عزت نہیں کرتا وہ ناگہان موت کے حوالہ کیا جائے گا۔ آج ہمارے جب والدین بوڑھے ہوتے ہیں، ضعیف ہوتے ہیں، تو انہیں ہماری بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بعض تو ایسے میں نے لوگ دیکھے ہیں جو اپنے والدین کو اولڈ ہوم میں بھیج دیتے ہیں۔ یہ سراسر زیادتی ہے، ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ میرے ساتھ نکالیں سلاطین کی دوسری سلاطین اور اس کا 20واں باب، دوسری سلاطین اس کا 20واں باب اور اس کی پہلی آیت پہ ہم غور کریں گے۔ انہی دنوں میں حزقیہ بادشاہ ایسا بیمار پڑا کہ مرنے کے قریب ہو گیا۔ تب یسایہ نبی اموس کے بیٹے اس کے پاس آ کر اس سے یوں کہا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو اپنے گھر کا انتظام کر لے، تو اب نہیں بچے گا، تو مر جائے گا۔ تو یسایہ نبی جو خدا کا برگزیدہ تھا، راست باز تھا، اس نے زار زار رونا شروع کر دیا۔ اس نے خدا کو یاد دلایا، اے خداوند یاد فرما کہ میں تیرے حضور سچے دل سے اور پوری طاقت سے میں تیرے ساتھ محبت کرتا رہا ہوں، تو میری زندگی کے ایام بڑھا۔ اس کی اپنی دعا کے وسیلہ سے اس کی عمر 15 برس اور بڑھ گئی۔ جب ایوب نبی کے 4 دوست اس کے پاس آئے، انہوں نے روزے بھی رکھا، 7 دن تو انہوں نے ایوب کے لیے روزہ رکھا، لیکن ان کے دل میں اس کے لیے محبت کی بجائے نفرت تھی۔ آج بھی ہمارا خدا روزہ جو ہے اس صورت میں پسند کرے گا جب ہم دوسروں کے لیے برکت کا وسیلہ بنیں گے، دوسروں کے لیے ہم محبت کا وسیلہ بنیں گے۔ اگر ہم کسی دوسرے کے لیے اپنے دل میں بدعت رکھتے ہیں، کوئی اس کے لیے ناراضگی رکھتے ہیں، جھوٹ اور بہتان رکھتے ہیں، تو ضرور ہے کہ ہم راست باز نہیں ٹھہر سکتے۔ جیسا کہ استشفاء کی کتاب میرے ساتھ نکالیں، استشفاء کی کتاب اس کا 6واں باب، اس کی ہم 5ویں آیت سے مطالعہ کریں گے۔ تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے کیا کر محبت رکھ، اور یہ باتیں جن کا میں تمہیں حکم دیتا ہوں وہ تیرے دل پر نقش رہیں، اور تیری اولاد کے تو ان کو اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا۔ اگر ہم خدا کی باتوں کو سنیں گے، خدا کے پاک کلام کو سنیں گے، تو ضرور ہے ہم اپنے بچوں کو اس کلام پر عمل کرنے کی تلقین کریں گے۔ آج بہت سی ایسے بہن بھائی ہیں جو ناخود سنڈے کو آنا پسند کرتے ہیں، کوئی خوشی ہو تو وہ صبح 9 بجے نہیں کوئی برات آ جاتی، یا کوئی برتھ ڈے ہو تو وہ صبح 9 بجے کوئی بھی سیلیبریٹ نہیں کرتا۔ خدا کا ٹائم جو ہے وہ لوگوں کو دے دیتے ہیں، جیسا ملاکی نبی کی کتاب میں لکھا ہے کہ اب ذرا خدا کو مناؤ تاکہ وہ ہم پر رحم کرے۔ ہم اپنے لیے رحم نہیں چاہتے، ہم خدا سے دور 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 ہو جاتے ہیں۔ تو جب خدا سے دور ہو جاتے ہیں، اس کے حکموں پر عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں، تو خدا ہمیں سزا کا مستحق کر دیتا ہے۔ میرے ساتھ نکالیں امثال کی کتاب، امثال کی کتاب میرے ساتھ نکالیں، اس کا 10 باب، امثال کی کتاب اس کا 10واں باب اور اس کی 27ویں آیت کا ہم مطالعہ کریں گے کہ خداوند کا خوف عمر کی درازی بخشتا ہے، لیکن شریروں کی زندگی اتار کر دی جائے گی۔ خداوند کا خوف اگر ہمارے دل میں ہے تو کلام حق ہمیں یہ کہتا ہے، سلیمان نبی امثال کی کتاب میں یہ بیان کرتا ہے کہ اگر ہمارے دلوں میں خدا کا خوف ہوگا تو ہماری عمر جو ہے وہ ضرور دراز ہوگی، کیونکہ اس کے دائیں ہاتھ میں دولت اور عزت ہے اور اس کے بائیں ہاتھ میں عمر کی درازی ہے۔ یہ اب ہمارا فیصلہ ہے کہ ہمیں خدا کے دائیں ہاتھ آنا ہے یا بائیں ہاتھ آنا ہے۔ اگر ہم دائیں ہاتھ آئیں گے تو ہمیں دولت بھی ملے گی اور عزت بھی ملے گی۔ وہ کس صورت میں ملے گی؟ جب ہم اپنے ماں اور اپنے باپ کی
इज्जत करेंगे। अगर हम अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करेंगे, उनको अच्छा नहीं जानेंगे, तो हम ये कभी अपने लिए ना सोचें कि जब हमारी औलाद बड़ी होगी, जिस तरह हमने अपने माँ बाप के साथ नफरत से पेश आए हैं, तो हमारी औलाद भी बड़े होकर हमसे जो है नफरत से पेश आएगी, हमें अच्छी वो कभी हमारी खिदमत नहीं कर सकते। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर इंसान की उम्र 60 वर्ष है, 18 वर्ष की उम्र में उसको नेकी बदी की कोई पहचान नहीं होती। 18 वर्ष तक उसके वालिदैन का ये फर्ज है उसको कलाम की तलकीन दे। जब 42 साल का अरसा बच जाता है, तो अगर वो शख्स, वो बहन या भाई, वो बेटी या बेटा सिर्फ 2 घंटे हर हफ्ते खुदा को देता है, तो उसने 1 महीने में 8 घंटे जो है वो खुदा को दिए, और पूरे साल में 96 घंटे उसने खुदा को दिए, और 42 साल में उसने 4032 घंटे खुदा को दिए। ये बहुत नाइंसाफी है, क्योंकि खुदा ने इंसान को इसलिए बनाया कि उसकी सताइश करे। अगर हम उसकी सताइश करेंगे तो हमारी उम्र दराज होगी। बाइबल मुकद्दस में सबसे ज्यादा जो उम्र वो मतूसला की है, फिर भी उसने मौत का मजा चला। तो आज हमारी उम्रें आप चेक कर लें, कोई 50 साल की उम्र में जा रहा है, कोई पैदा होते ही इस दुनिया से जा रहा है, कोई 10 साल की उम्र में जा रहा है, कोई 60 साल की उम्र में जा रहा है। हम खुदा के पास नहीं आते। कलाम मुकद्दस में लिखा है, मुबारक है वो जो पाक दिल है वो खुदा को देखेंगे। मुबारक है वो जो जवानी के दिन में खुदा को याद करते हैं। अगर हम जवानी के दिन जो है अपनी ऐशो इशरत में गुजारते हैं, और जब करीब मर्द है तो हम जितने मर्जी दुआएं करें वो हमारे लिए बेफायदा साबित हों, जब तक हमारे दिल पाक और साफ नहीं। खुदा किसी पाक कलाम के वसीले से मुझे बड़ा खुदा उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। खुदा के कानून के वसीला से जो कलाम आज आपने सुना कि हमें अगर अपनी उम्र को बढ़ाना है तो हमें अपने माँ बाप की इज्जत करनी है, और जिस मुल्क में, जिस इलाका में, जिस जगह पे हम रहते हैं, हमें दूसरों के साथ भी प्यार मोहब्बत से रहना। स्वायं खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे, और आज के कलाम की शुक्रगुजारी करने के लिए मैं फरार से कहूँगी कि वो आए और शुक्रगुजारी के लिए सभी आंखें बंद हो जाए और सभी खुदा का शुक्रिया अदा करें। खुदा तेरा मैं शुक्र करती हूँ इस घड़ी के लिए, इस मौका के लिए, इस खूबसूरत सुबह में तेरी दोपहर के लिए, तेरे आए हुए लोगों के लिए, खुदा जो अभी तक नहीं आए उनके लिए, ऐ खुदा खुदा जो आ चुके हैं, खुदा उनके लिए बहुत चाहती हूँ। खुदा तेरे कलाम के लिए दुआ करती हूँ। खुदा जो तेरा कलाम हमने सुना है, ऐ खुदा हमें सुनने वाले काम बख्शी, खुदा हमें समझने वाला दिल अदा करी, ताकि खुदा जो हमने कलाम सुना है अपनी जिंदगी पर लिखे और खुदा अपनी जिंदगियों को बदलने वाले बने। यहोवा खुदा मैं बचनसिया के लिए दुआ करती हूँ, जिसने खुदा तेरे पूरे इंतजाम को खुदा अपने हाथों में लिया, जो उसने लफ्ज बोले तेरी मर्जी के मुताबिक है। यहोवा पाक खुदा बाकी वक्त भी खुदा तेरी मर्जी के मुताबिक हो। यहोवा पाक खुदा मैं दुआ करती हूँ, बीमारों को शिफा दे, कमजोरों को दिलासे दे, कमजोरों को जोर बख्शी। खुदा जो तेरी हजूरी में नहीं आते उन लोगों को अपनी हजूरी में लाने का फजल बख्शी। यहोवा पाक खुदा मैं दुआ करती हूँ, खुदा अपने अंकल के लिए वो जहाँ भी है, यहोवा पाक खुदा उसकी हिफाजत करी, निगहबानी करी, और खुदा उसको हर बर्बाद से बचा कर रखी, उसके पूरे घराने के साथ हुई। यहोवा पाक खुदा खुदा तेरे बंदा है, खुदा जो दिन रात तेरे लोगों के लिए बरकत चाहते हैं। यहोवा पाक खुदा मैंने जो कुछ अपनी दुआ में मांगा, ईमान रखा कि खुदा यीशु राजा मैंने पाया, मांग लेती यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। इससे पहले कि हम हदिये का गीत गाएं, 1-2 चंद जरूरी ऐलान है। ऐलान ये है कि जिस तरह हम पाक जुमेरात को शराबती खाना आपस में बांट कर खाते हैं, और मैं अपनी तमाम खवातीन से, भाइयों से कहूँगी कि अपने घरों से जब पाक जुमेरात की इबादत हो
उस दिन सब अपने घर से अपना अपना खाना लेके आए, लेकिन जो 28 तारीख को पाम संडे की इबादत है उसमें मेरे प्यारे भाई बिशप इमरान साहब और भाई शहजाद साहब और सारे दीगर हमारे जो क्रिश्चिया के बड़े मेंबर हैं उन्होंने फैसला किया कि हम सब मुतफिक होकर कुछ पैसे मिलाकर खाने का इंतज़ाम करें। तो मैं चाहती हूँ कि जो भी बहनें भाई इस दिन में अपने दिन में इस चीज़ को महसूस करते हैं तो वो अपना मुट्ठी को खोलें और इस चर्च में पाम संडे वाले दिन भी और गुड फ्राइडे वाले दिन जब हम 1 बजे से 4 बजे तक हमारी 3 बजे तक इबादत होती है तो उसमें हम चाहते हैं कि हम जरूरी नहीं चाहते कि हम बिरयानी ही खाएं, बल्कि हम चाहते हैं कि जिस तरह आप चाहते हैं, कोई चावल देना चाहता है, कोई रुपए पैसे देना चाहता है, कोई देश देना चाहता है, तो उनकी खुशी है तो हम चाहते हैं कि इन सारी बातों में हम अपने जो लोग आते हैं वो खाना खाकर जाएं। तो बराए मेहरबानी अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे साथ मुतफिक होकर इस काम को करें। तो इतवार की इबादत आपको पता है 9 बजे से 11 बजे तक होती है, तो बराए मेहरबानी आप सब उस इबादत में आया करें। रोज़ों के याम है तो आप सबका काम है कि आप बुध को जो हमारी इबादत होती है वो 6 बजे से 8 बजे तक होती है। डेली जो इबादत है वो 6 बजे से 7 बजे तक होती है, 1 घंटा। अपने दुनियावी कामों को छोड़कर आप ज़रूर आया करें। जुमेरात की जो इबादत होती है वो बहनों की 3 बजे से 4 बजे तक होती है और जुमे की जो है वो 2 बजे से 4 बजे तक। तो बराए मेहरबानी टाइम की कदर करें और जो भी चाहता है हमारे साथ तामन करना, बहनें भी भाई भी, तो वो ज़रूर करें और हम सब मिलकर इन लोगों के लिए जो आए होंगे उनके लिए खाने का इंतज़ाम कर सकेंगे। बराए मेहरबानी सो आए हम सब खुदा की साइश में गीत गाएंगे और उसी के साथ अपना हथियार नजराना उठाएंगे।
आइए आप उन लोगों के लिए दुआ भी करेंगे, खुदावंद को इसी तरह अपने बरकतों में छुपाए और जो भी मसले सारे खुदावंद दूर करे और इस खुराक पर बरकत दे जो हमेशा अपने लोगों के लिए तैयार करके लाते हैं। तो मैं बताना ही चाहती अपने भाइयों को भी बहनों को भी कि जो देग है ना चनों वाली वो 6000 की बनती है। तो बराए मेहरबानी अगर 2 लोग 3 लोग इकट्ठे देना चाहते हैं तो मैं चाहती हूँ कि जो लोग आए हों वो खाना खा कर ही जाएं। तो हम सब मिलकर, एक बंदा नहीं, सब घरों में बहुत प्रॉब्लम्स है, बहुत परेशानियां हैं, लेकिन जब हम मिलजुल कर ये सारे काम करेंगे तो खुदावंद जरूर हमारा साथ देगा। सो आकर मैं हम तमाम बीमार लोगों के लिए, बेरोजगारों के लिए, बेइलाजों के लिए दुआ करेंगे। तो मैं अपने प्यारे भाई विश्वदान साहब को बुलाऊंगी और चाहूंगी कि हम सब मुतफिक होकर दुआ करें बीमार लोगों के लिए, परेशान, और ये जो नजराना है इसके लिए खास दुआ करेंगे। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएं। प्यारे आसमानी बाप तेरा शुक्र अदा करता हूँ इस खूबसूरत जिंदगी के लिए, जिंदगी की नियमतों के लिए। आए खुदा हम सबको उम्र की दराजी अता कर। मैं दादाजी के लिए दुआ करता हूँ, उनको जो टाइफाइड की शिकायत है, आए खुदा जो भी उनके बदन में टाइफाइड के जरासीम है उनको अपने पाक लहू से धो देना, क्योंकि तेरा पाक लहू जिस जगह से गुजर जाता है वहाँ से हर किस्म की बीमारी, दुख, तकलीफ दूर हो जाती है। अंकल बशीर के लिए ऐ खुदा मिन्नत करता हूँ, उनको छू मसर मखसूस कर, उनकी जो भी बीमारी है उनको तंदुरुस्ती का बिस्तरा अनायत फरमा। जिस तरह तूने 38 वर्ष के बीमार को जो बैते हज़ा के हौस पर पड़ा उसको हुक्म दिया कि उठ अपनी चारपाई उठा अपने घर चला जा। तेरे इस्माइल बाप मैं उन तमाम बहनों के लिए दुआ करता हूँ जो बे औलाद हैं, तेरे खजाना में किसी चीज़ की कमी नहीं है। तेरे इस्माइल बाप उनके बंद रहम को खोलने की कुदरत तेरे पास है। ऐ खुदाओं जिस तरह तूने ऐ खुदाओं सबको बरकत दी, मैं अपने उन भाइयों के लिए दुआ करता हूँ जो बेरोजगार हैं, उनको अच्छी रोजी अता कर ताकि वो जायज़ तरीके से अपनी रोजी कमा कर तेरे कदमों में बैठ कर तुझसे हमेशा की जिंदगी हासिल कर सकें। तेरे इस्माइल बाप मैं उन फैमिलियों के लिए दुआ करता हूँ जिनके पास अपना घर नहीं है, उनको घर जैसी नेमत अता कर। फिर इस्मानी बाप मैं उन बेटे और बेटियों के लिए दुआ करता हूँ जो तुझसे दूर हैं, ऐ खुदा उनको अपने प्यार की डोरी से खींच कर अपने पास, ताकि अबलीस शर्मिंदा हो जाए, उसको शर्मिंदा होना पड़े और वो उन जानों को, उन दिलों को जिस पर उसने कब्जा कर रखा है, ऐ खुदा छोड़कर दूर दराज चले। मैं अपनी प्यारी बहन पाशो बाजी रजिया के लिए दुआ करता हूँ, शहजाद के लिए, अपने एल्डरों के लिए और उनके बीवी बच्चों के लिए, ये मार्केट चर्च की पूरी कलीसिया के लिए, पूरी इंतजामिया के लिए, सबको नाम बनाम बरकतों से मालामाल कर। बाजी जूनी के लिए दुआ करता हूँ जिसने हदिया नजराना खाने की सूरत में तेरे लोगों के लिए फराहम किया, कुछ आसमान से उस पर बरकत नाज़िल करना, आसमान के दरीचे खोल कर उस घराने को अपनी इलाही बरकत से नवाजना। ये दुआ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, जिसने हमें सिखाया, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं तो भी हमारे कर्ज माफ कर। हमें आजमाइश में ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा रहे। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरूह की इफ़ाक़त, शराफ़त हम सबके साथ अब से लेकर हमेशा तक